Good morning, students. I'm RK. Today I am going to teach you a very famous poem, Mercy, composed by William Shakespeare, the great poet and dramatist of English literature. This poem has been taken from the Act 4, Scene 1st of The Merchant of Venice, which is a very famous play of William Shakespeare. So, student, first of all, I shall tell you the background of the poem. And the poem is a strong appeal for mercy. It portrays the most thrilling and exciting court scene of the play. Antonio, who was a Christian, needs money because he was to help his friend. So he had to borrow money from the Shylock the Jew, and who was his enemy as well as his rival, and wanted to humiliate Antonio. So he became ready to give him money, but the condition was that Antonio will have to pay back his money within the short span of 3 months. If he was unable to pay back his money within this period, then Shylock will cut 1 pound of flesh from his body near heart. And it happened so Antonio could not pay back his money within this period. And then Shylock filed a case in the court of law. Then Bassanio, who was Antonio's friend, and his wife Portia, disguised as a doctor of law, and tried to change Shylock's mind by an appeal, but Shylock was not ready to give in. Then Portia told him the importance of mercy by telling him the quality of mercy. So, student, let's read the poem and know what did Portia tell about mercy. The quality of mercy. The quality of mercy. The quality of mercy is not strained. क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, मतलब दया एक ऐसी क्वालिटी है जिसे स्ट्रेन नहीं किया जा सकता, बलपूर्वक किसी के दिल में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दया किसी के दिल में ज़बरदस्ती उत्पन्न नहीं की जा सकती। इट ड्रॉप, ये गिरती है एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। अपॉन मीन्स पर, प्लेस मीन्स धरती पर, बीनीथ मीन्स नीचे। यह स्वर्ग से, फ्रॉम मीन्स से, स्वर्ग से धरती पर नीचे, यह स्वर्ग से नीचे धरती पर वर्षा की कोमल बूंदों की तरह से स्वतः गिरती है। जैसे वर्षा की कोमल बूंदें आसमान से स्वतः अपने आप गिरती हैं, वैसे ही दया भी व्यक्ति के हार्ट से अपने आप स्वतः निकलती है। इस पे ज़बरदस्ती किसी के दिल में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मीन्स द वर्च्यू ऑफ मर्सी इज नॉट ए थिंग टू बी एक्सरसाइज अंडर फोर्स। इट इज़ ट्विस ब्लेस्ड, यह एक दोहरा वरदान है। इट ब्लेसिथ हिम, ये उसे भी आनंदित करती है, उसे भी आनंद देती है। दैट गिव्स, जो दया दिखाता है, एंड हिम, उसे भी, दैट टेक्स, जो दया रिसीव करता है। सो स्टूडेंट, इन दिस स्टैंजा पोएट मीन्स टू से दैट मर्सी इज ए noble virtue of human heart. It cannot be forced to come out of a person's heart. It comes out of a person's heart as naturally as the gentle rain falling from the sky upon the earth below. And it is endowed with double qualities. It blesses both the giver or receiver of it. Next, it is mightiest in the mightiest. It becomes. इट इज़ माइटियस्ट, ये सबसे शक्तिशाली होती इन द माइटियस्ट। इट बिकम्स मीन्स होता है इज ए वर्थी एट्रीब्यूट ऑफ, वर्दी एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में गुण, मीन्स यह शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण बन जाती है। दया शक्तिशाली लोगों का सबसे शक्तिशाली गुण होती है। द थ्रोन मोनार्क, थ्रोन मोनार्क मीन्स सिंहासन पर बैठे हुए, मोनार्क में राजा को, बेटर देन हिज क्राउन, उसके ताज से बढ़कर उसकी शोभा बढ़ाती है। हिज सेप्चर, उसका राजदंड, सोज दिखाता है, द फोर्स मीन्स शक्ति को, ऑफ टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल में कहते हैं सांसारिक सत्ता की शक्ति को ही दिखाता है। द एट्रीब्यूट, की ये एट्रीब्यूट मीन्स किंगशिप, राजा का जो राजशाही का जो गुण है, उसका अपना आव होता है, डर होता है, भय होता है, एंड मेजेस्टी उसकी शान और शौकत होती है, और ये केवल उसकी सांसारिक शक्ति का ही प्रतीक है। मीन्स हिज सेप्चर इज merely the symbol of his earthly authority, and the fear he imagines, and the power he wields, and the reason why the kingly authority is held in awe. नेक्स्ट देखेंगे, वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजाओं का डर और भय, राजाओं का डर और भय, राजाओं का डर और भय, राजाओं का डर और भय
उसी राज सिंहासन में होता है, वेरिन जिसमें डथ सिट वो बैठता है। ओके, बट मर्सी लेकिन दया, मर्सी दया इज अबव ऊपर होती है, दिस सेप्चर्ड स्वे लेकिन दया राजदंड की इस शक्ति से ऊपर होती है। बट मर्सी लेकिन दया इज मीन्स है अबव दिस सेप्चर्ड स्वे लेकिन मर्सी इस राजदंड की शक्ति से ऊपर है। इट इज इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, यह राजाओं के दिलों में विराजमान होती है। इट इज इंथ्रोन्ड, ये विराजमान होती है, इन द हार्ट ऑफ किंग्स, राजाओं के दिलों में विराजमान होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, ये अपने आप में भगवान का एक एट्रीब्यूट होती है, गुण होती है। एंड अर्थली पावर, सांसारिक शक्ति, डथ देन सो तब दिखती हैं, लाइक एस गॉड्स बिल्कुल भगवान की शक्ति के जैसी दिखती है, वैन जब मर्सी दया सीजन्स मिल जाती है जस्टिस न्याय में। यहाँ पोएट के कहने का मतलब है कि सांसारिक शक्ति भी तब भगवान की शक्ति के जैसी दिखती है जब मर्सी, मर्सी का मतलब है जबकि न्याय करने वाला व्यक्ति, मर्सी सीजन, मर्सी मिल जाती है जस्टिस से, मतलब धरती पर न्याय करने वाला व्यक्ति अपने न्याय में दया को मिक्स कर देता है, तब उसकी शक्ति भी सांसारिक शक्ति के जैसी हो जाती है। सो इन दिस स्टैंजा द पोएट मीन्स टू से दैट मर्सी इज ए क्वालिटी ऑफ गॉड, ये ईश्वर का एक गुण है। एंड इट इज़ इंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, ये राजाओं के दिलों में होती है। एंड व्हेन ए पर्सन गिविंग जस्टिस सॉफ्टन्स इट with mercy, then his power is seen like the power of God. So student, in this way we have completed the text. Now I shall tell you the central idea of the poem. So in this poem, William Shakespeare has highlighted the quality of mercy. He says that mercy is a noble virtue of human heart. It cannot be forced to it cannot be forced to come out of a person's heart. It is spontaneous. Spontaneous means होती है स्वतः, अपने आप निकलती है। It is a twist blessed. It blesses both the giver and receiver of it. So it is the most powerful thing on the earth. It is a quality of God. It suits the king better than their crown. When a person giving justice softens it with mercy, so his power is seen like the power of God. So student, now I shall tell you some important explanation, some important stanzas from the point of view explanation. So this one stanza, this one, it is enthroned in the heart of the king. एक तो ये वाला इस पैसा और सबसे पहला वाला पैसेज द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्टेन, ये दोनों पैसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में है, यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, इट ड्रॉप्ड एज अ जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन। सॉरी, इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन, मतलब इट ड्रॉप्ड ऐसे गिरती है, एज मीन जैसे, जेंटल रेन फ्रॉम हेवन जैसे स्वर्ग से वर्षा की कोमल बूंदें, अपॉन द प्लेस धरती पर, बीनीथ मीन्स नीचे गिरती हैं। तो यहाँ सिमिली का इस्तेमाल हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, सिमिली जिसमें सो लाइक एज का यूज़ होता है, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने ये पोएम को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जो लोग लॉकडाउन की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठकर इस वीडियो को देख सकें और दूसरे लोगों को इस पोएम के मतलब इसके बारे में बता सकें और पढ़ सकें। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।